Assalamu alaikum and good evening, everyone. A warm welcome to our respected speakers, colleagues, and participants joining us today. I'm Dr. Saqib Mushtaq, and it is my pleasure to host today's session of the Gen workshop organized by the Global Entomologist Network. Today's session aims to guide graduates and young professionals from diverse academic backgrounds on scholarship opportunities in the Kingdom of Saudi Arabia. Many talented individuals face challenges due to limited information, unclear eligibility criteria, or complex application procedures. This session aims to bridge that gap. This workshop will provide practical advice, expert insights, and strategies to help you pursue higher education and research in KSA. We are honored to have distinguished speakers from various Saudi universities with extensive expertise in Saudi academia, scholarship programs, and academic mentoring. Their insights will help clarify common misconceptions and strengthen your scholarship applications. Please stay engaged and send your questions via the WhatsApp group or Zoom chat box. We will ask them on your behalf at the end of the session. Now, without further delay, I warmly invite the Gen Ambassador, Ms. Ansa Ali, to introduce our first speaker, Mr. Hafiz Talha Mansoor from King Saud University, Saudi Arabia. Assalamu alaikum and a very warm welcome again. Our today's session is on scholarship opportunities in Saudi Arabia. To speak on this important topic, we are honored to have with Mr. Talha Mansoor, an accomplished plant pathologist with expertise in plant bacteriology and molecular genetics. Mr. Talha is currently pursuing his PhD in plant pathology and also working researcher in King Saud University, focusing on characterization of Xanthomonas species. He personally benefited from the Saudi scholarship and with several years of academic and research experience in Saudi Arabia, he has direct exposure of Saudi scholarship programs, admission processes, and research culture. Today, he will share expert and in-depth guidance on scholarship opportunities in Saudi Arabia and with the particular focus on King Saud University for aspiring students. Mr. Talha Mansoor, we warmly welcome you and invite you to take the floor. Assalamu alaikum everyone. Ji, Walaikum Assalam. Mr. Talha, please, you can start with your presentation. Thank you. आप सब लोग सुन सकते हैं मुझे? Yes, you are audible. ताकि भाई मुझे जरा वॉइस का बताएं आप सब लोगों को जी जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। आप लोगों को Yes, चलें ठीक है, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। जी प्लीज। स्क्रीन शो हो रही है? जी आपकी प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रही। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड जरा, अभी आ जाइए। हाँ जी, क्लियर है? यस, इसको जूम कर दें थोड़ा सा। जी तो माई सेल्फ is Talha Rao, and I'm currently working as a research assistant at the microbiology lab, Department of Plant Protection, College of Food and Agriculture Sciences, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia. So today I'm here to present the scholarship information regarding the scholarship available in Saudi Arabia. So here is the some sort of my background. I have done my bachelor's in agricultural plant pathology from Bahauddin Zakir
University Multan. Then I have done my masters in plant pathology from the University of Punjab, from College of Food and Agriculture Sciences. Currently, I'm doing PhD in plant pathology from King Saud University Riyadh, and also working as a research assistant at the microbiology lab, as I mentioned earlier. So my expertise are in characterization of plant pathogens, and also I have worked on the bacteriophages. And previously, I have published my two research articles in different journals. This master, which I have done from University of the Punjab, Lahore. So here are my two research articles which I have published while I was working here at the microbiology lab. So today I will discuss about the different kind of scholarships अभी. तो हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 25 के करीब पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जो सऊदी अरब में अवेलेबल हैं, जो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं. तो इनमें से तकरीबन 4 से 5 जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं, और वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों को इसके बारे में पता भी है. और जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं इसके अंदर, तो उसमें कुछ का बहुत सारे लोगों को पता होता है, कुछ का नहीं पता. जो इसमें प्रॉमिनेंट है साइंस एंड किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद किंग साउद यूनिवर्सिटी है, किंग फहद यूनिवर्सिटी है. इसके अलावा भी जो यहाँ लिस्ट मेंशन यहाँ की हुई है, इसके साथ जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिंक्स भी अवेलेबल हैं, और ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये भी स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं. तो यहाँ सऊदी अरब में जो स्कॉलरशिप्स हैं, मोस्टली लोग जो हैं हमारे पाकिस्तान से या ओवरऑल जो मुस्लिम हैं स्पेशली, वो देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि यहाँ पर आने के उनके बेनिफिट्स क्या हैं. तो यहाँ आने का एक लोगों का अट्रैक्शन ये भी है कि यहाँ पर एक तो आप आने के बाद उम्रा कर सकते हैं, हज कर सकते हैं. इसके अलावा जो है वो आप जो मस्जिद नबी है आप उसकी ज़ियारत के लिए भी जा सकते हैं, और मल्टीपल टाइम्स आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं यहाँ आने के बाद, और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मिलती हैं, और इसके अलावा आप इंडिविजुअली जाना चाहें तो भी ये अवेलेबल होती हैं. अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ स्कॉलरशिप्स हैं यूजली वो, इसके लिए दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं. अभी 2 साल से पहले ये जो स्टडी इन सऊदी पोर्टल है ये यहाँ अवेलेबल नहीं था. तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये स्टडी इन सऊदी जो पोर्टल है 2 साल से वो इसको ओपन कर रहे हैं. ऑल्दो कि इसमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन है और जो बाकी प्रोसीजर है वो भी थोड़ा सा उसमें यानी मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. लेकिन ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से देखें तो एक ये ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. तो इसमें और जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं उसमें डिफरेंस है थोड़ा सा. तो जो स्टडी इन सऊदी पोर्टल है इसके थ्रू आप एक ही टाइम पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद 3 to 5 जो हैं पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं. और जिस तरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर आप इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें एडिशनल जो है इसमें पुलिस सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी है. इसके अलावा इसके अंदर एक हेल्थ सर्टिफिकेट है, उसका प्रॉपर कोई फॉर्मेट नहीं है, इन जनरल आप बनवा सकते हैं कहीं से भी. बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मोर और लेस सेम ही हैं जो आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं आपको. तो जो मोस्टली यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज एडवर्टाइज करती हैं स्कॉलरशिप वो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज की तरफ से आते हैं. अब स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अब दोनों में से किसको सिलेक्ट करें. तो मेरी सजेशन ये है कि वो दोनों जगह ही अप्लाई कर दिया करें. और समटाइम्स ये होता है कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन भी ओपन होते हैं किसी एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के, और यहाँ पर ये पोर्टल भी ओपन होता है. तो आप जो है दोनों तरफ ही अप्लाई कर दें. उसके बाद जो फर्दर ये एक्सेप्टेंस है आपकी एडमिशन यूनिवर्सिटी की तरफ से और फिर वीज़ा जो प्रोसीजर है उसके अंदर यहाँ का थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट है. जो क्राइटेरिया है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज का, तो उसमें बेहतर है आप दोनों तरफ कर दें सेफ साइड पे रहते हुए. अच्छा, ये जो आपको फर्स्ट में लिंक नजर आ रहा है ये स्टडी इन सऊदी का पोर्टल है. ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है सऊदी अरब की, उनकी तरफ से ये पोर्टल जो अनाउंस उन्होंने किया हुआ है. तो 2 साल से अभी इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और अभी तक किसी की सिलेक्शन तो नहीं हुई इसके थ्रू, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट मेरे साथ कांटेक्ट में है. लेकिन फिर भी अब ये है कि किसी टाइम भी यहाँ से बच्चों की सिलेक्शन भी हो सकती है, तो उसमें अप्लाई जरूर करना चाहिए. इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं उसमें और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो लिस्ट में मैंने आप लोगों को पहले स्लाइड में शो की थी. लेकिन जो प्रोमिनेंट हैं यूनिवर्सिटीज तो उनकी जहाँ नाम और जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अवेलेबल हैं. एज सच
कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है स्कॉलरशिप का, जैसे चाइना के अंदर है CSE का, इसके अलावा वहाँ पे और भी स्कॉलरशिप के नाम है, तो यहाँ ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटीज के जो स्कॉलरशिप हैं वो इंडिविजुअल ही अनाउंस होते हैं और वो एज इट इज उनके नेम के साथ ही आते हैं आगे। अच्छा, इसके बाद जो इसमें जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट के भी होते हैं, मास्टर्स के भी होते हैं और PhD के भी होते हैं। अब जो यूनिवर्सिटीज अंडर ग्रेड के स्कॉलरशिप देती हैं वो बहुत कम है। तो उसमें अभी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना है, तो उसके अंदर भी बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो ज़्यादातर तो इस्लामिक स्टडीज़ में है, लेकिन अब साइंसेज में भी हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बैचलर्स के अंदर स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पर नहीं। फिर मास्टर्स और PhD इनके अंदर रेशो थोड़ी सी ज़्यादा है, और फिर ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। तो इसमें जो इसका प्रोग्राम ड्यूरेशन है वो बैचलर्स का अमूमन 4 ईयर जैसे पाकिस्तान में होता है, ऐसे यहाँ पर भी मोर लेस यही है। मास्टर्स में 2 to 3 ईयर्स है। अगेन डिपेंड करता है, ये हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है क्राइटेरिया। देन PhD पे आ जाए तो वो फिर यहाँ कोर्स वर्क भी है और साथ में रिसर्च वर्क भी है आपका, तो इसमें दोनों चीजें हैं। तो आपने इसमें तकरीबन जो है ना वो यूनिवर्सिटीज के हिसाब से देखें तो 3 to आपके लिए 5 ईयर तक ये जाती है जो ड्यूरेशन है इसका टोटल। तो अगेन ये जो तीनों इसकी जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन समहाउ इतना ही होता है तकरीबन। अच्छा, फिर उसके बाद आपको बेनिफिट क्या मिल सकते हैं, तो सऊदी अरब के जो स्कॉलरशिप्स हैं इसमें 3-4 चीजें ऐसी हैं वो बाकी जो स्कॉलरशिप्स हैं जो पूरी दुनिया में अनाउंस होते हैं उसमें बहुत कम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मंथली स्टाइपेंड मिलता है वो सब जगह पर, आपको ट्यूशन फीस मिल जाती है जहाँ फुली फंडेड होती है, फिर आपको अकोमोडेशन भी मिल जाती है। फिर 3 चीजें रह जाती हैं पीछे, हेल्थ इंश्योरेंस, सब्सिडाइज जो मील है, और उसके अलावा एयरफेयर टिकट है। तो ये जो पूरी दुनिया में कह लें मोस्ट जो प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप हैं उनमें से एक स्कॉलरशिप है सऊदी अरब की, जो यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो अच्छी 3-4 हैं जो प्रोवाइड करती हैं। तो ये फैसिलिटीज बाहर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें बहुत कम मिलती हैं ये। तो इसलिए ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है यहाँ जो सऊदी अरब की स्कॉलरशिप के हवाले से मिल जाता है। अच्छा, फिर जो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स हैं, तो ये रफ एस्टिमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो इसमें ओवरऑल मोर देन जो है वो 10,000 के करीब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज में वो इस वक्त जो एनरोल्ड हैं करंटली। और फिर जहाँ तक स्टाइपेंड की बात है, तो यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप पर आते हैं तो वो एज अ स्टूडेंट ही आते हैं। तो सिर्फ ये हमारी किंग साउथ यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर एक कैटेगरी है रिसर्चर की, तो उसमें आपको थोड़ा सा स्टाइपेंड की जो है ना इन टर्म्स ऑफ स्टाइपेंड भी बेनिफिट मिल जाता है, स्टाइपेंड ज्यादा होता है स्टूडेंट्स की निस्बत। बाकी जो स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड है ओवरऑल सब यूनिवर्सिटीज में, वो साइंसेज में जो है उनका 900 रियाल या 890 के करीब है। और फिर ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो इसका खासतौर पे मास्टर्स का स्टाइपेंड है उसके अंदर वो डिफरेंट जो उसमें एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी एंगेज कर देते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो स्टाइपेंड जो है वो फिर 900 से लेकर और 2500 रियाल तक है। ठीक है, ये मास्टर्स का बता रहा हूँ मैं। बैचलर्स का जो है वो इतना ही है तकरीबन 890 रियाल तक पर मंथ। फिर जो है इसमें जो PhD के अंदर हैं, तो वो भी अगेन जो स्टूडेंट हैं, तो उसमें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड वेरी करता है यहाँ पर। ये 900-890 रियाल से स्टार्ट होकर और फिर ये अराउंड जो है वो $2,000 इक्वल टू 8,000 रियाल तक भी है। तो ये भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट है क्राइटेरिया इस मामले में। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर कि जो यहाँ पर इसका जो क्राइटेरिया है, यहाँ जब स्कॉलरशिप पर अप्लाई करते हैं तो उसमें दो चीजें हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं वो जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या और कंट्री से अप्लाई कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो उसमें वो अपना जो पासपोर्ट है उसी की बेस पर अप्लाई करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं विद इन सऊदी अरब होते हैं, तो वो भी अगर अप्लाई करें तो वो भी पासपोर्ट पर ही अप्लाई करेंगे। अगर वो इकामा पर अप्लाई करते हैं तो वो एज एन एक्सटर्नल स्टूडेंट कंसिडर नहीं होंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें एज के हवाले से, तो जो अंडर ग्रेड हैं उसकी एज तकरीबन जो है वो 20 <25 होनी चाहिए। ठीक है। और जो मास्टर्स में है तो उनकी जो है वो आप कह लें 35 तक की है। तो और ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकती है, चीज लाजमी नहीं है ये। सॉरी 30 कहना था मैंने, 35 कह दिया मास्टर्स का। तो ये भी वेरी कर सकती है। जो PhD की एज है वो जो है ना मिनिमम सॉरी मैक्सिमम 35 तक होनी चाहिए। तो एज के हवाले से ये क्राइटेरिया है यहाँ की स्कॉलरशिप का। उसके अलावा जो अब ये दोनों जो पोर्टल थे, इसमें जो स्टडी इन सऊदी वाला पोर्टल है इसकी डेट्स भी चेंज होती रहती हैं। अंडर ग्रेड के जो एडमिशन हैं वो इसके थ्रू जो होते हैं वो
जुलाई टू कह लें कि सितंबर तक डेट्स आती हैं। और उसके बाद जो मास्टर्स पीएचडी के हैं वो फिर सितंबर टू दिसंबर, समटाइम सितंबर टू नवंबर, 2 मंथ्स के लिए होता है ओपन ये। जो यूनिवर्सिटी के इसका स्कॉलरशिप है उनकी जो डेट्स हैं ये भी वेरी करती हैं, हर साल ही तकरीबन चेंज होती रहती हैं। मोस्टली जो इनटेक है यहाँ पर वो फॉल इनटेक ही होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें स्प्रिंग इनटेक भी होता है। तो फिर ये अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं डेट्स। तो इसलिए जो इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट डेट्स हैं उनमें जो मंथ्स आते हैं वो तकरीबन हैं, आप कह लें कि सितंबर से लेकर और जनवरी तक इनके दरमियान एडमिशन ओपन होते हैं। या आप आगे देखें तो फिर वो अप्रैल टू कह लें जुलाई तक या अगस्त तक चली जाती है बात, यहाँ तक आते हैं तकरीबन। उसके लिए फिर आपको ये कि यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पर है वो फॉलो करते रहना चाहिए, ताकि आपको जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं एडमिशन्स के हवाले से वो मिल जाए वहां से। तो अच्छा, सबसे पहले इसमें यह है कि अब आप फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप के लिए देखना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो डिपार्टमेंट है, आप उसके हवाले से देखेंगे। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के हवाले से देखना है तो यहाँ पर KFUPM है यूनिवर्सिटी, वो अच्छी है इंजीनियरिंग की। तो एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, आप और भी देख सकते हैं। तो चूज करें यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, ठीक है, उसकी रैंकिंग देखनी है चीजें, तो आप उसके मुताबिक वो देख सकते हैं। देन जब एडमिशन अनाउंस होते हैं सबसे पहले वहां जाकर आपने अकाउंट क्रिएट करना है अपना। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जो अपना प्रोग्राम है उसकी रिक्वायरमेंट्स लाजमी चेक करनी है आपने। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स उसको देखते नहीं है और फिर बाद में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। और फिर जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए अकॉर्डिंगली आपने उनको वहाँ अपलोड कर देना है। और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसकी जो भी डेडलाइन है उसके आप कह लें विद इन 2 मंथ्स जो है ना, ये यूजुअली यूनिवर्सिटीज अनाउंस कर देती हैं आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है या नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनके अंदर ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एक तो फॉर्म होता है वो तो आपने करना है फिर लाजमी। तो जो आपकी डिग्रीज है ना, जो आपकी टर्मिनल डिग्री है, मास्टर्स में कर रहे हैं तो बैचलर्स की, PhD में कर रहे हैं तो बैचलर्स मास्टर दोनों की, बेहतर है आप इनको ना HEC से टेस्ट करवा के रख लें, आपको इन फ्यूचर भी और स्कॉलरशिप के लिए काम आ सकती हैं। फिर CV का पूछते हैं स्टूडेंट, तो मास्टर्स में तो यूजुअली ये है कि वो अपनी नॉर्मल जो CV होती है जो है एकेडमिक्स के हवाले से उसको ही बना लें। अगर उसके अंदर उनके पास फॉर एग्जांपल पब्लिकेशंस हैं और इस तरह की कोई चीजें हैं तो उसको लाजमी शो करें वहाँ पे। PhD में है तो थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लें CV को अपनी, PhD के अंदर थोड़ा सा उसको प्रोजेक्ट बेस्ड अपनी CV को डिजाइन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और फिर जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो भी कंपलसरी होते हैं। तो आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वहां से देख लें, अपने जो भी आपके एम्प्लॉयर हैं उनकी तरफ से मिल जाए। और या बेहतर है आप अपने जो भी आपके जिन्होंने सुपरवाइज किया आपको मास्टर्स में, ठीक है, आप उनसे ले लें। अगर आप मास्टर्स में कर रहे हैं, बैचलर्स में ऑलरेडी अगर आपने पाकिस्तान से किया है और मास्टर्स में कर रहे हैं तो फिर आप बैचलर्स के अंदर जो भी आपके प्रोफेसर हैं आप उनसे ले सकते हैं। फिर पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए और एटलीस्ट उसकी वैलिडिटी जो है ना वो आपकी 1 साल से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर फिर आपको जब कभी वीजा आपने स्टैम्प करवाना है तो वहां भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको अप टू डेट रखें। फिर जो IELTS या टॉफल है ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, इसकी रिक्वायरमेंट जो है इवन विद इन यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करती हैं चीजें ये। तो जो इंग्लिश एग्जाम के हवाले से हैं, तो कुछ जगह पर जो EPC है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो भी चल जाता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। फिर जो इसमें रिसर्च प्रपोजल है, कवर लेटर है, ये ऑप्शनल होते हैं यहाँ पर, मोस्टली यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड नहीं है। तो एक दो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर ये चाहिए होते हैं, तो फिर आप उसको भी अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन कर सकते हैं। फिर पब्लिकेशन है तो वो भी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है स्कॉलरशिप के लिए, अगर हो तो प्लस पॉइंट है आपका। तो इसी तरह अगर आपने कोई सेमिनार अटेंड किए, कोई कॉन्फ्रेंसिस हैं, तो आप उनको, अगर आपका CGPA थोड़ा कम है तो आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। तो वैसे इंग्लिश एग्जाम की मैं बात कर रहा था, तो जो आइट्स है ना उसमें 5.5 बैंड होने चाहिए एटलीस्ट आप लोगों के। तो इससे जो कम है वो जो है ना वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके अलावा जो लास्ट में हमारे पास वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कोई वॉलंटियर वर्क है आपका सोसाइटी के लिए, कोई आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अवार्ड मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से, आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक प्लेटफॉर्म है, ये मेरा फेसबुक का ग्रुप है। तो अराउंड इसके कोई 54 के मेंबर्स हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उसके थ्रू भी जो अपने फ्रेंड सर्कल में हैं लोग उनको इन्फॉर्मेशन देने की। और इसमें हमारे साथ बहुत सारी जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं उसके कुछ स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड हैं, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसके थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बहुत सारी। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर कह लें कि आपने कुछ चीज़ें जहन में रखनी है अपने। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, पोर्टल फॉर एग्जांपल अगर 2 मंथ्स के लिए ओपन हुआ है तो उनकी कोशिश होती है एट द एंड अप्लाई करेंगे हम।
तो ये काम नहीं करना है। एट द एंड होता यही है कि वो पोर्टल में एरर्स आना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जिसमें जो आप डॉक्यूमेंट ठीक भी अपलोड कर रहे होते हैं तो उधर वो आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर देता रहता है। तो एट द एंड फिर वो एप्लीकेशन ऐसी रह जाती है आपकी, और वो टाइम गुजर जाता है। तो कोशिश यही करनी है एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल आप उसको टाइम से अप्लाई करें, और फिर उसके बाद आप वेट करें अपने रिजल्ट का। ठीक है। और इसके अलावा जो है ये करें आपके, आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में ना करें अप्लाई, आप इस मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। ठीक है। तो ये कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम, तो क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की वो फीस वगैरह भी नहीं होती एप्लीकेशन की मोस्टली, तो आप जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। और फिर जहाँ भी जिस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं अप्लाई, देखें वहाँ पर अगर आपको जो स्टूडेंट मिल जाते हैं कोई ऑलरेडी जो सीनियर्स हैं, उनसे कोशिश करें कॉन्टेक्ट करने की, थोड़ी सी नेटवर्किंग करें, अपनी पीआर बनाएं थोड़ी सी, ताकि आपको उधर जो यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल स्कॉलरशिप्स हैं और बेनिफिट्स हैं, इस तरह की चीजें जो है आपको टाइमली पता हो, और आप उसके मुताबिक अपनी डॉक्यूमेंटेशन करके रखें। और सिमिलरली इस तरह जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आप इन जनरल इस चीज़ का खास ख्याल रखें, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स पे नेम है बाकी चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट होनी चाहिए आपके। ठीक है। तो इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखें। समटाइम्स होता है ये स्टूडेंट्स जब वीज़ा प्रोसेस वगैरह करवा रहे होते हैं तो उस दौरान में उनके नाम वगैरह में यहाँ इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो फिर आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली होती है ना वो आपका ज़ाया होने का खतरा होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप केयरफुली चेक करें पहले से ही। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो सीवी है आपकी, आप जस्ट उसके अंदर जो आपने काम किया है ना आप उसी को मेंशन करें, आपको एक्स्ट्रा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप ऑनेस्ट रहें इस हवाले से, और आप कॉन्फिडेंट रहें जो काम किया है आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है। बाकी वो जो भी नेटवर्किंग है, जैसे आपकी पीआर है उसका मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, कि वो आप आजकल जिस तरह भी हमारे पास सोशल मीडिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास एक्सेस है डिफरेंट टूल्स की, डिफरेंट एप्लीकेशंस की, कम्युनिकेशन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आप उनको इफेक्टिव जो है ना तरीके से इस्तेमाल करें। और जो है इसके अलावा अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो उनको अंडर करते हैं यहाँ के स्कॉलरशिप्स को। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं हमें पता है वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो हमारी रिसर्च बेस्ड डिग्रीज हैं उनके अंदर, वहाँ लैब्स के अंदर यूनिवर्सिटीज में इतने नहीं होते रिसोर्सेज, तो इसलिए रिसर्च भी अच्छी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर लैब्स भी बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर रिसर्च के हवाले से रिसोर्सेज भी हैं, तो आप एक अच्छी जो है ना वो इफेक्टिव रिसर्च कर सकते हैं यहाँ आने के बाद अपने सब्जेक्ट के हवाले से। और इसके अलावा जो ये स्कॉलरशिप्स हैं इसके अंदर आपको यहाँ आने के बाद और क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपको जो एजुकेशन मिल रही है, साथ साथ आप एक्सचेंज करते हैं डिफरेंट जो यहाँ कंट्री से स्टूडेंट्स आए होते हैं उनके साथ अपने आइडियाज, उनके कल्चर, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है इसके अंदर। और जो बाकी गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट जो ये अनाउंस करती हैं स्कॉलरशिप्स, तो उनकी बिहाइंड द सीन यही होता है कि उनके पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं इसके अंदर, तो वो इसलिए इन चीज़ों को अनाउंस करते हैं। और एट द एंड मैं आपको ये बता दूं कि किंग साउथ यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स अभी ओपन हैं, और जो 10 फरवरी है उसकी लास्ट डेट है, मास्टर्स और पीएचडी के लिए ओपन है। तो एक चीज़ मैं मिस कर गया था वो मैं यहाँ बताता चलूँ, कि जो यहाँ स्कॉलरशिप हैं वो मेल फीमेल दोनों के लिए यानी सऊदी अरब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑफर करती हैं। तो उसमें स्पेशली जो एग्री ग्रेजुएट्स हैं हमारे, उनके हवाले से मैं बताता चलूँ कि वो जो कॉलेजेस हैं स्पेसिफिकली, एक तो कॉलेज है फूड एग्रीकल्चर साइंसेज का किंग साउथ यूनिवर्सिटी में है। इसके अलावा प्लांट साइंसेज का डिपार्टमेंट है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर एक प्लांट साइंस का डिपार्टमेंट है अल कसीम यूनिवर्सिटी में। एक ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में भी। तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं ना उनको छोड़कर कॉमर्स है, इसके अलावा जो है लाइफ साइंसेज के हैं, इंजीनियरिंग है, ठीक है, आईटी के हैं, इन सब में स्कॉलरशिप यहाँ सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। आप सब वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैनी थैंक्स आप सब लोगों के सुनने के लिए, और आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो यू आर वेलकम टू आस्क। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर तलहा मंसूर। इंशाल्लाह हम जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो आफ्टर all the presentations, as we have a total number of 4 speakers from different Saudi universities. So we will now take the next speaker. Without further delay, I want to invite the Gen Ambassador, Ms. Ansa Ali, to introduce our second speaker, Mr. Hafiz Umar Farooq from King Abdullah University of Science and Technology, South.
Assalamu alaikum and a very warm welcome once again. Our next speaker of today's session is Hafiz Umar Farooq. We are honored to welcome Mr. Hafiz Umar Farooq, who is currently pursuing a fully funded PhD in plant sciences at King Abdullah University of Science and Technology. His doctoral research focuses on understanding the molecular basis of heat stress tolerance in quinoa. He completed his master's degree through the prestigious Erasmus Mundus Master's Program, during which he studied and conducted research across Sweden and Turkey. Having personally benefited from Saudi Arabian scholarship programs and with several years of academic and research experience in the kingdom, he possessed practical experience of Saudi scholarship opportunities, admission procedures, and the academic research culture. In today's session, he will share practical wisdom and guidance on pursuing scholarship opportunities in King Abdullah University, Saudi Arabia. Hafiz Umar Farooq, we warmly welcome you and invite you to take the floor. Okay, thank you so much, Ansa. Can you hear me well? Yes. Yes, okay. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. Yeah, sir, please. Okay, first of all, thank you so much for inviting me. आज मैं काउस की जो भी मास्टर्स और पीएचडी की स्कॉलरशिप्स हैं उसके बारे में इंशाल्लाह आपको ओवरव्यू दूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, काउस यूनिवर्सिटी जो है सऊदी अरबिया में जद्दा के एरिया में है और इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2009. इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी एंड वेरी इम्पैक्ट फोकस्ड यूनिवर्सिटी. नॉर्मली यहाँ पे बीएस अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स ऑफर नहीं होते हैं, जस्ट मास्टर्स और पीएचडी रिसर्च, और इसके अलावा पोस्ट डॉक और जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे. नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स कैंपस है हमारा यूनिवर्सिटी में. अराउंड 120 प्लस नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और ओवरऑल 64% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 37% फीमेल्स हैं. और रिसर्च एरियाज इंक्लूड तमाम डिसिप्लिन्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, यहाँ पे उनकी रिसर्च होती है. फूड एंड हेल्थ, वाटर, एनर्जी एंड द डिफरेंट डिजिटल डोमेन्स लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई. लास्ट 3 इयर्स से टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग के अकॉर्डिंग किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरे अरब वर्ल्ड में नंबर 1 पे है. नॉर्मली यहाँ पे 3 मेन डिविजन्स हैं: बेसी, सेमसी एंड पीएसई. बेसी डिवीजन के अंदर बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं. फॉर एग्जांपल बायो साइंस, बायो इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, मरीन साइंस एंड प्लांट साइंस. सेमसी डिवीजन में मोस्टली कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग. एंड पीएसई डिवीजन में फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, अर्थ सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड अप्लाइड फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग. नॉर्मल आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स इस यूनिवर्सिटी में ऑफर नहीं होते हैं. तो जो भी टेक्निकल एरियाज हैं, हेल्थ साइंस से रिलेटेड रिसर्च भी बायो साइंस के डिपार्टमेंट्स में, बायो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में हो रही है. और मोस्टली इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स में और पीएचडी में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंस डिवीजन. ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं: बायो साइंस, बायो इंजीनियरिंग, मरीन साइंस, प्लांट साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड. और इसमें डिफरेंट जिनोमिक्स, माइक्रोबायोम, सिंथेटिक बायोलॉजी रिलेटेड एरियाज पे रिसर्च हो रही है. एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं की कि हमारी यूनिवर्सिटी किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी बिल्कुल रेड सी के साथ है. तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेड सी इकोसिस्टम और कोरल्स वगैरह पे भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होती है. सेकेंड, सेमसी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी डिसिप्लिन्स हैं वो इस डिवीजन में है: कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स.
और पीएससी फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिवीजन में ज़्यादातर केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से रिलेटेड जो मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। तो ओवरऑल फोकस जो है यूनिवर्सिटी का वो सस्टेनेबिलिटी पे है और विजन 2030 पे है। बहुत ज़्यादा फोकस रिसेंटली अप्लाइड रिसर्च पे शिफ्ट हुआ है। अगर आपके पास अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं ज़्यादा अप्लाइड साइड पे, तो यू कैन अप्लाई हेयर फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। और लास्ट कुछ ईयर से स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री और नेशनल लिंक्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के साथ फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च। रिसर्च इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है और फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कम्युनिटी है। इसके अलावा कोर लैब्स हैं यूनिवर्सिटी में जिसमें बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट अवेलेबल हैं और काफ़ी प्रोफेसर्स की बहुत अच्छी कोलैबोरेशंस है डिफरेंट इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज से। डिग्री ऑप्शंस यहाँ पे मास्टर्स की ऑप्शन है। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर नहीं होते हैं, तो मास्टर्स के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप मास्टर्स विद थीसिस एंड नॉन थीसिस ऑप्शंस, आप दोनों ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ज़्यादा इंडस्ट्री वाली साइड पे जाने का होता है तो वो नॉर्मली थीसिस वाली ऑप्शन चूज नहीं करते, बट इट्स अप टू यू, यू कैन डिस्कस विद योर सुपरवाइजर। सेकंड ऑप्शन पीएचडी की है। अगर आपके पास ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर पीएचडी। इसके अलावा एक और ट्रैक है मास्टर पीएचडी का पाथवे। तो इसमें आपके पास अगर सिर्फ बीएस की डिग्री है तो आप बीएस के साथ मास्टर्स पीएचडी के ट्रैक में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपका मास्टर्स मुकम्मल होगा, उसके फौरन बाद आप अपनी पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। आप सेम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं या आप अपना प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हैं। इवन आप अपनी लैब भी चेंज कर सकते हैं पीएचडी के लिए अगर आप चाहें। आप सिर्फ एक एकेडमिक प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं पर ईयर। आप ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल आप प्लांट साइंस में भी अप्लाई कर रहे हैं, बायो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में भी अप्लाई कर रहे हैं, बायो साइंस के प्रोग्राम में भी अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मली 2 साल में 2 दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं यहाँ पे। जो स्प्रिंग सेमेस्टर है वो स्टार्ट होता है जनवरी में और उसकी डेडलाइन अराउंड सितंबर अक्टूबर खत्म होती है। और फॉल सेमेस्टर स्टार्ट होता है अगस्त में और उसकी डेडलाइन आई थिंक अभी आज इसकी डेडलाइन है जनवरी 17। और इस डेडलाइन के बाद ये सेमेस्टर स्टार्ट होगा अगस्त में। स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट क्या है यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है काफ़ी, इवन पूरे सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड वाइज और फैसिलिटी वाइज सबसे काफ़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। फुल ट्यूशन फीस कवर होती है आपकी। इसके अलावा आपको मंथली लिविंग स्टाइपेंड मिलता है। मास्टर्स में इट्स अराउंड $20,000 पर ईयर और पर मंथ ये अप्रोक्सीमेटली 6,000 सऊदी रियाल के इक्वलेंट है। और पीएचडी के अंदर आपका जो स्टाइपेंड है इट्स अबाउट 25,000 to 30,000 यूएसडी पर ईयर। और इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो आपको ऑन कैंपस हाउसिंग भी मिलती है। इवन मैरिड स्टूडेंट्स को भी मिलती है, लेकिन मैरिड स्टूडेंट्स दे हैव टू पे सम स्टाइपेंड। और कॉस्ट है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस है और रेलोकेशन सपोर्ट वगैरह भी आपको दी जाती है। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तलहा ने काफ़ी ब्रीफली मेंशन किया है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन बहुत कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो वेरी कर रही होती हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स या मार्कशीट्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारी इंग्लिश में होती हैं, लेकिन इसके अलावा आपको चाहिए सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए काउस में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा 3 रेफरीज के रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। कोई भी आपके पुराने टीचर्स, सुपरवाइजर्स, अगर आपने किसी इंडस्ट्री में जॉब की हुई है, आपके एम्प्लॉयर, वो भी रिकमेंडेशन लेटर्स दे सकते हैं। लेकिन ये रिकमेंडेशन लेटर्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं, आप खुद से अपलोड नहीं कर सकते। आपको अपने प्रोफेसर्स की जो भी ऑफिशियल ईमेल्स हैं वो वहाँ पे मेंशन करनी है और अपना रिलेशनशिप मेंशन करना है कि वो आपके फॉर्मर सुपरवाइजर हैं सपोज या आपके टीचर हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। आपके प्रोफेसर्स को कॉन्फिडेंशियल लिंक जाएगा, उसमें उन्होंने आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है। तो जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं जिनकी आप डिटेल्स वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, आप उन्हें
आप उनसे फॉलो अप लेते रहें कंटिन्यूसली। इसके अलावा पासपोर्ट, जो ऑलमोस्ट हर जगह चाहिए होता है। काउस की काफ़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड। टोफल का जो स्कोर एक्सेप्टेबल है मिनिमम इट्स 81, और आइल्स का 6.5। पहले, आज से 3 या 4 साल पहले, वो आपकी एप्लीकेशन बिल नेक्स्ट राउंड में फॉरवर्ड भी नहीं करते थे जब तक आपके पास ये इंग्लिश के टेस्ट नहीं होते थे। लेकिन अभी रिसेंटली कंडीशनल बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट राउंड में ट्रांसफ़र हो जाती है, पर आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये इंग्लिश के टेस्ट नहीं है। सो प्रिपेयर इन एडवांस। इसके अलावा जीपीए को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है काउस का एडमिशन डिपार्टमेंट। तो मिनिमम जो सीजीपीए रिक्वायर्ड है इट्स 3। पर मैंने यहाँ मोस्टली ऑब्जर्व किया है कि जो भी मास्टर्स या पीएचडी स्टूडेंट, स्पेशली फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से आते हैं, तो वो एट लीस्ट टॉप 3 या टॉप 5 स्टूडेंट्स में ज़रूर होते हैं। जीआरई नहीं चाहिए, ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास जीआरई है स्पेशली इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स में, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज होंगे। मास्टर्स के लिए किसी प्रोफेसर के साथ अपनी पीएचडी को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है उसमें आपके पास, वो आपसे 3 प्रेफरेंसेस पूछते हैं प्रोफेसर्स की। तो जिस डिपार्टमेंट में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने वहाँ के प्रोफेसर्स को, फैकल्टी को अच्छे से देखना है। तो जोन से प्रोफेसर्स की का रिसर्च एरिया आपकी प्रोफाइल से ज़्यादा मैच हो रहा है, तो आपने वहाँ पे तीन तीन प्रेफरेंसेस देनी होती हैं। मास्टर्स में भी ये चाहिए, पीएचडी में भी ये चाहिए। लेकिन मास्टर्स के लिए ये चीज़ नेसेसरी नहीं है कि आप किसी भी प्रोफेसर को ईमेल करके सेपरेटली उसके साथ अपनी एप्लीकेशन को डिस्कस करें। पर काउस के एडमिशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पर मेंशन है कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनको रिकमेंडेड है कि वो अपनी एप्लीकेशन को किसी प्रोफेसर के साथ लाजमी डिस्कस करें। इसमें ये होगा कि प्रोफेसर बैकएंड से आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा, पर 100% कंफर्मेशन आपको प्रोफेसर भी नहीं दे सकता कि आपकी काउस की स्कॉलरशिप हो गया है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि आपकी एप्लीकेशन को बैकएंड से थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, पर एट द एंड जब तक आपकी ये सारी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होते हैं, काउस्ट आपको एडमिशन लेटर नहीं सेंड करता। सिंपल स्टेप्स इसमें ये है कि आपने अपना प्रोग्राम चूज करना है जो भी आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट है, और आपने उनका जो एडमिशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उस पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, अपने रेफरी से कांटेक्ट करना है। आप कंटिन्यूसली अपना एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। तो नॉर्मली काउस के अंदर आप जिन प्रोफेसर्स की प्रेफरेंस मेंशन करते हैं अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, उन प्रोफेसर्स में से कोई प्रोफेसर, अगर आपकी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है तो उन प्रोफेसर्स में से कोई प्रोफेसर आपसे कांटेक्ट करेगा। तो प्रोफेसर इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, उसके बाद एक एडमिशन डिपार्टमेंट की तरफ से इंटरव्यू होता है। नॉर्मली 2 से 3 राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के, तो समटाइम्स 2 और समटाइम्स 3। डेडलाइंस हर साल थोड़ा सा वेरी करती हैं, तो जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है काउस के एडमिशन डिपार्टमेंट की, वो आप कंटिन्यूसली चेक करते रहें। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट फॉल 2026 की डेडलाइन 17 जनवरी थी टुडे। तो नेक्स्ट स्प्रिंग 2027 के लिए एडमिशन ओपन होंगे अराउंड जुलाई अगस्त। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं उसके लिए। इसके अलावा काउस में एडमिशन के लिए एक और ट्रैक है, काउस विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1-2 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ। यहाँ पे सपोज अगर आप पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में, या आप किसी और यूरोपियन यूनिवर्सिटी में, या मे बी चाइना में, या किसी और यूनिवर्सिटी में आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे काउस आपको एक काउस विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम में इंटर्नशिप ऑफर करता है। तो आप यहाँ पे आके इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसका एक बेनिफिट ये है कि क्योंकि ग्रेजुअली हर साल थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में आके आप जब कोई लैब ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको वहाँ से पीएचडी ऑफर हो सकती है उस प्रोफेसर की तरफ से, और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस फिर काफ़ी ज़्यादा इजी हो सकता है।
तो इस इंटर्नशिप के बेनिफिट्स क्या हैं? ये मंथली स्टाइपेंड देते हैं आपको अराउंड $1000, और इसके साथ आपको फ्री अकोमोडेशन मिलती है कैंपस में। वीज़ा सपोर्ट करती है यूनिवर्सिटी, और आपको राउंड ट्रिप, जिस कंट्री से भी आप आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, किसी और कंट्री से आ रहे हैं, तो आपको राउंड ट्रिप टिकट देंगे। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए टिप सिर्फ ये है कि अ, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं किसी और यूनिवर्सिटी से, तो आप ये प्रोफेसर्स की प्रोफाइल एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये काउस विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट भी है। आप इसको देख सकते हैं। कुछ कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ पे अपडेट होते हैं। अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, आप प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, और आप ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी अवेल कर सकते हैं। फाइनली कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं यहाँ मेंशन करूँगा। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि ऑन कैंपस हाउसिंग है, प्लस फैमिली ऑप्शंस भी हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है फैमिलीज़ के लिए भी। हेल्थ सर्विसेज हैं, हाई स्पीड इंटरनेट। इसके अलावा क्योंकि बहुत बहुत डाइवर्स कम्युनिटी है काउस्ट में, तो अ, सब कम्युनिटी के लिए जिम्स, पूल्स, बीचेस और डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़, कैंपस ऑन कैंपस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, शटल्स चलती हैं। और मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वीकली बसेस हैं मक्का और मदीना के लिए। तो ये तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप सिर्फ ये है कि आप प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करें, फैकल्टी को एक्सप्लोर करें, और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, रेफरेंस लेटर्स जो चाहिए अपने प्रोफेसर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ कांटेक्ट करके अपने रेफरेंस लेटर्स रेडी करें। और अगर आपको स्पेसिफिकली काउ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू असिस्ट यू। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Hafiz Umar Farooq, for an insightful and informative session. Now, without further delay, I warmly again invite the Indian Ambassador, Ms. Ansari, to introduce our third speaker, Mr. Abdul Wahab, from King Fahad University of Petroleum and Minerals. Assalamu alaikum and a warm welcome to all. Our next speaker for this session is Mr. Abdul Wahab, who will be presenting on scholarship opportunities in King Fahad University of Petroleum and Minerals. Mr. Abdul Wahab completed his master's degree in mathematics from Comsats University, Islamabad, and currently pursuing a fully funded PhD in mathematics in King Fahad University, Saudi Arabia. His research focuses on two-phase flow, phase field modeling, and computational fluid dynamics. In addition to his doctoral studies, he is serving as teaching assistant at King Fahd University. With several years of academic and research experience, and having successfully secured and completing studies under the Saudi Arabian Scholarship Program, he possesses in-depth knowledge of Saudi scholarship opportunities, admission procedures, and the academic research environment. In today's session, he will share rich experience and guidance on pursuing scholarship opportunities in King Fahd University for aspiring students. Please join me in welcoming Mr. Abdul Wahab. The floor is yours. अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम। Okay, I will share my screen now. So, the screen is visible to everyone? Yes, Okay. yes, please. Yeah, can you just minimize this? Okay. So, Assalamu alaikum everyone. So, myself Abdul Wahab, and currently I'm doing PhD from King Fahd University of Petroleum and Minerals. It is located in Dammam. So, मैं थोड़ा सा पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। सो मैंने बैचलर की है मैथमेटिक्स में, लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम जो अभी हमारे ग्रुप की फील्ड है। सो आई एम फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। मैंने अपना बैचलर बीजेडयू से किया है, एंड देन आई वेंट टू कॉमसेट्स लाहौर
for my MS, where I publish two Q2 journal articles. MS में मेरी फील्ड जो थी वो कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स थी, बट जब मैं इधर KFUPM मैंने ज्वाइन किया 2022 में, तो आई स्विच माई फील्ड टू CFD, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स एंड फेस फील्ड मॉडलिंग. दिस इज बेसिकली दी ऑयल एंड वाटर सेपरेशन. यूजुअली जो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जो एसोसिएटेड कंपनीज है लाइक अरामको, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सऊदीया से, तो बेसिकली मेरी फील्ड उन्हीं से फेमिलराइज करती है कि ऑयल एंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करके तो उनको सेपरेट कैसे करना है और यूजफुल कैसे बनाना है. एंड मैं KFUPM के अंदर जो है एज ए टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर रहा हूँ. बेसिकली जो सऊदीया की स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे कि तला ने और उमर भाई ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट मैं मोर स्पेसिफिकली जो है KFUPM के बारे में आपको बताऊंगा. तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड होती है, वो इंशाल्लाह मैं फर्दर आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा. सो KFUPM बेसिकली QS वर्ल्ड रैंकिंग में 67th नंबर पे आता है. और अगर आप इसको एक स्पेसिफिक डोमेन में देखेंगे मिडल ईस्ट रेंज में, तो ये इसकी रैंकिंग 1 है, यानी टॉप ऑफ द लिस्ट है मिडल ईस्ट में. बेसिकली इसका जो विजन है वो वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज और लेबोरेटरीज और कोलैबोरेशन प्रोवाइड करना है, और एक अच्छा रिसर्च इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स को, ताकि यहाँ पे एक इनोवेशन और प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा सके. और इसकी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी की नाउअडेज क्वालिटी ये है कि ये लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हैं. हर साल यहाँ पे, इवन हर सेमेस्टर में, यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद इंक्रीज हो रही है. लाइक फॉर एग्जांपल इस सेमेस्टर में जो हमारे पास स्टूडेंट आया है इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसकी तादाद तकरीबन 500 है. इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हमारे पास इस सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी को KFUPM को जिसने ज्वाइन किया. एंड अंडर ग्रेजुएट उस ऑब्वियसली उनकी तादाद और भी ज्यादा है. एंड देन पोस्ट डॉक एंड देन फैकल्टी आल्सो. सो हमारे इस KFUPM के अंदर जो फैकल्टी है वो करंटली अबव 1000 है ओवरऑल यूनिवर्सिटी के अंदर. और जो पोस्ट डॉक हैं यहाँ पे, जो पोस्ट डॉक पे आते हैं, वो करंटली तो 500 है, बट हमारी यूनिवर्सिटी का टारगेट जो है वो 1500 तक जाने का है, पोस्ट डॉक्स को इंक्रीज करने का है, ताकि एक बेटर रिसर्च एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया जा सके. और पोस्ट डॉक के साथ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अटैच करके एक रिसर्च कोलैबोरेशन एनवायरनमेंट बनाया जाए, रिसर्च ग्रुप्स बनाए जाए. और जो अभी हमारे पास ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं KFUPM के अंदर, जिसमें मास्टर्स और PhD आते हैं दोनों, वो 2500 प्लस हैं. और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की तादाद राइट नाउ 9500 से above. अच्छा, KFUPM के अंदर जो बेसिकली डिपार्टमेंट्स हैं वो कॉलेजेस के अंदर डिवाइडेड हैं. तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स है, जिसके अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आता है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है, एंड फिजिक्स आता है. सिमिलरली हमारे पास कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स है, जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आता है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स. और कॉलेज ऑफ केमिकल एंड मटेरियल्स है, कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिल्ट इन्वायरमेंट है. और उन्हीं के अंदर डिफरेंट हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं. हर डिपार्टमेंट की जो है डिफरेंट ही क्राइटेरिया है, बट ओवरऑल एक यूनिवर्सिटी का भी क्राइटेरिया है, वो मैं दोनों आपसे शेयर करूंगा. अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की ओवरऑल रैंकिंग के बारे में बात करूं, तो राइट नाउ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट रैंक्ड 84 इन द QS वर्ल्ड रैंकिंग, स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट रैंकिंग. और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, और ईच वन ऑफ यू जो बेसिकली अपने डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स देखना चाहते हैं. फर्दर डिपार्टमेंट्स में KFUPM बिजनेस स्कूल आता है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ग्लोबल स्टडीज. एंड हमारे पास कॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज है. अच्छा, ये जो कॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज है, ये
अंडर ग्रेजुएट के लिए है तो ये आर्ट्स का, अगर आप देखें इंग्लिश लैंग्वेज, इस्लामिक, अरेबिक स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, प्रेप ईयर, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, तो एक साल वो इस डिपार्टमेंट में होते हैं। जैसे सऊदी स्टूडेंट्स हैं या जो सऊदीया में रहते हैं और कॉलेज यहीं से पढ़ते हैं और फिर केएफपीएम में आते हैं, तो उनको एक साल यहाँ पे लगाना पड़ता है प्रेप ईयर में। और कॉलेज कम्युनिटी कॉलेज है ये बेसिकली उनके लिए जो फैकल्टी के जो बच्चे हैं या जो इस कॉलेज में एफएससी, या जो हमारे यहाँ एफएससी होता है वैसे कॉलेज ये हमारे पास है। अच्छा, एक और कॉलेज है यहाँ पे, कॉलेज ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस। ये जो कॉलेज है ये बाकी डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ है, बाकी कॉलेजेस से मुख्तलिफ है। क्योंकि इसके बेनिफिट्स, इसकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो बाकी कॉलेजेस से डिफरेंट है। वो इस तरीके से, बिकॉज ये जो कॉलेज ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस है, ये डायरेक्टली फंडेड बाय अरामको है। ये अरामको, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि यहाँ पे ऑयल एंड गैस गैस वाटर कंपनी है बेसिकली अमेरिका की, तो ये डायरेक्टली कॉलेज फंडेड बाय दैट कंपनी है। तो इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया मुख्तलिफ है, इसका बेनिफिट भी मुख्तलिफ है, वो मैं एंड में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे केसीपीएम के अंदर जो रिसर्च एनवायरनमेंट है वो काफ़ी एडवांस है। जैसे इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास 15 डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स हैं, जो कि हर डिपार्टमेंट के हर एक टीचर को एफिलिएट किया गया है रिसर्च सेंटर्स के साथ। एंड देन इन्हीं रिसर्च सेंटर के अंदर पोस्ट डॉक भी आते हैं। जिन्होंने पोस्ट डॉक करनी है वो इस हवाले से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो बेसिकली जो सऊदीया का विजन है 2030, 2050 एंड 2060, तो वो विजन जो है, ये सारी जितनी भी रिसर्च मैंने आपको बताया सेंटर्स, ये उस विजन से अलाइन है। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे मास्टर या पीएचडी या फर्दर पोस्ट डॉक या फैकल्टी के लिए भी सोच रहा है, तो उसको इनके विजन के अलाइन करना पड़ेगी अपनी रिसर्च को। तो अगर आपकी रिसर्च इनके विजन के अलाइन होती है, सो यू हैव मेनी बेनिफिट्स। आप इनके सेंटर से एसोसिएट हो जाते हैं, देन या आपको इसी रिसर्च के साथ साथ आपको पीएचडी में, मास्टर से पीएचडी में, पीएचडी से पोस्ट डॉक में, एंड देन यू कैन फाइंड अ पोजीशन आल्सो है। And for more about research center and their projects, I also have given the link here. अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ रिसर्च फैसिलिटीज हैं, सिंस हमारे पास यहाँ पे जो रिसर्च सेंटर हैं, इन सब की अपनी अपनी फैसिलिटीज इनके अपने अपने सेंटर्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सम ऑफ देम मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ, जैसे एचपीसी, जीपीयू, ये सारे हमारे पास कंप्यूटिंग, हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। और हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है ट्रांसमिशन के लिए, स्कैनिंग के लिए। इसके अलावा हमारे पास रोबोटिक्स लैब है, मोबाइल कंप्यूटिंग लैब है, डिजिटल लैब है केफीपीएम के पास, कंप्यूटर नेटवर्किंग लैब है, एंड मैनी मोर। यहाँ पे यानी कि फैसिलिटी के हवाले से कोई कमी नहीं है। जो जो सेंटर्स मैंने बताए हैं, जो जो रिसर्च डायरेक्शंस मैंने बताई हैं, तो केफीपीएम में हर हवाले से फैसिलिटीज मौजूद हैं। अदर देन दैट फैसिलिटीज, अगर को करिकुलर की बात करें तो यहाँ पे मॉल्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। फैकल्टी का अलहदा मॉल है, स्टूडेंट्स के अलग मॉल हैं। बेसिकली एडमिशन दोनों के लिए ही है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। हेल्थ यहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद हैं, स्विमिंग पूल है, स्क्वाश है, जिम है, एंड केएफपीएम की एक प्राइवेट बीच भी है, जो कि यानी कि आप अवेल कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। अच्छा, यहाँ पे केएफपीएम में दो फेजेस में एडमिशन होता है, साल में दो दफा एडमिशन होता है। जो फर्स्ट टर्म होता है केएफपीएम के एडमिशन का, जिसको ये साल का पहला टर्म बोलते हैं, वो बेसिकली मई और जून में होता है। मई और जून में इसका एडमिशन अनाउंस होता है। और उसके बाद जो उसका इनटेक होता है, जो बेसिकली स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आते हैं, वो जनवरी में आते हैं। इसी तरह सेकेंड टर्म एक स्टार्ट होता है इनका दिसंबर और जनवरी में। अगर आप यहाँ देखें तो बेसिकली ये टर्म तो अभी क्लोज हो चुका है, क्योंकि 10 जनवरी लास्ट डेट थी।
और ये 23 नवंबर को ओपन हुआ था। सो इसका जो बेसिकली सेकंड टर्म है वो दिसंबर जनवरी में होता है, और उसका इनटेक अगस्त में होता है, यानी कि स्टूडेंट जब आते हैं तो वो अगस्त के मंथ में आते हैं। तो इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस पेज पे ही आप चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो तीन तरह के आपको एडमिशन के पाथ दिखाए गए हैं। एक है एमएस एंड पीएचडी थीसिस बेस्ड, और एक है एमएस प्रोजेक्ट बेस्ड, और एक है एग्जेक्टिव मास्टर प्रोग्राम। सो बेसिकली जो ये एमएस थीसिस बेस्ड है, पीएचडी थीसिस बेस्ड है, ये फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अवेल करना चाहते हैं स्कॉलरशिप। और जो ये एमएस प्रोग्राम है प्रोजेक्ट बेस्ड, इसके अंदर भी स्कॉलरशिप मौजूद है। बट जो ये एग्जेक्टिव मास्टर प्रोग्राम है, ये उनके लिए है जो पे करते हैं, जो यानी कि इसके अंदर स्कॉलरशिप नहीं है। एंड देन वी हैव एडमिशन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ एडमिशंस यानी कि टाइप्स हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट एंट्री टू पीएचडी। अब ये डायरेक्ट एंट्री टू पीएचडी का मतलब क्या है, मैं आपको बताते चलूं कि हमारे केसीपीएम के अंदर मास्टर्स एडमिशन अब खत्म कर दिए गए हैं, यानी कि मास्टर्स में एडमिशन नहीं होते। जिसके जिसने बैचलर की हुई है जिस स्टूडेंट ने, वो डायरेक्ट पीएचडी में आ सकता है, और जिसने मास्टर्स की हुई है वो सिंपल पीएचडी में आ सकता है। सिमिलरली हमारे पास जो है इधर मास्टर साइंस थीसिस बेस्ड, ये स्पेसिफिकली जस्ट इंजीनियरिंग के अंदर एक फील्ड है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, उसमें है। एंड देन हमारे पास प्रोजेक्ट बेस्ड है मास्टर्स, इसमें पीएचडी नहीं है प्रोजेक्ट बेस्ड में। एंड देन एक एमएस प्रोग्राम है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि ये लास्ट ईयर वाला है तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे स्लाइड लगाई है। अब रिसेंटली बिजनेस स्कूल के अंदर भी पीएचडी स्टार्ट हो गई है, तो उनका भी एमएस खत्म हो जाएगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है इन दो प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट पीएचडी में या आफ्टर मास्टर्स पीएचडी में। इन दोनों के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आपने डायरेक्ट पीएचडी में आना है, ऑब्वियसली आपकी 4 ईयर की बैचलर्स होनी चाहिए, और जो बेसिकली आप एडमिशन लेते हैं पीएचडी में डायरेक्ट में, तो वो 4 से 5 साल की पीएचडी होती है आपकी। और मिनिमम रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की 3 CGPA है, और इसके अंदर अब मैंडेटरी है आइल्ट्स, जो कि 6.5 होना चाहिए, इवन फॉर बैचलर्स आल्सो जो डायरेक्ट पीएचडी में आ रहे हैं। और जो आफ्टर मास्टर्स आ रहे हैं उनके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, देयर इज नो चेंज, 3 मिनिमम CGPA एंड 6.5 आपका जो है आइल्ट्स का स्कोर, या डुलिंगो का 120, इसी तरह से टोफिल का भी है। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की। इट डजेंट मीन के मिनिमम रिक्वायरमेंट फिलफिल करने पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, इट्स नॉट नेसेसरी। और अगेन मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी है कि हर डिपार्टमेंट की फर्दर रिक्वायरमेंट भी है। लेट्स से जो मेरा डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम 3.5 CGPA है। और यहाँ मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया है फर्दर डिपार्टमेंट्स का। अगर आप डिपार्टमेंट्स में जाएंगे यहाँ, तो आप जो है अपने अपने डिपार्टमेंट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है मिनिमम सीजीपीए की, या क्या कैसा उनको स्टूडेंट चाहिए, उसके रिसर्च बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो वो भी आप जो है वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बेसिकली मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए जब आपने अप्लाई करना है, तो बेसिकली जैसे अभी दो स्पीकर्स ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही हैं। क्योंकि अब यहाँ पे केसीपीएम के अंदर केस ये है कि कोई मास्टर्स नहीं है, डायरेक्ट पीएचडी है या पीएचडी है। सो उसके लिए क्या है कि आपको पीएचडी के केस में फॉर मास्टर स्टूडेंट प्रपोजल चाहिए, और 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, मोटिवेशन लेटर चाहिए आपको, आइल्स मैंडेटरी है, टॉफिल हो या डुलिंगो हो, वाइट पिक्चर बैकग्राउंड के साथ आपकी हो, सीवी, पासपोर्ट, ये नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स फर्दर एप्लीकेशन बाकी एप्लीकेशन के लिए जरूरी होती हैं वो यहाँ पे भी जरूरी है। एक चीज है कि आपको कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए, जैसे आपको चाइना में चाहिए होता है, यहाँ पे नहीं।